Good morning, ma'am. In the last class, which algorithm we have done? Another what's the लॉन्गेस्ट पढ़ा दिया गया था। राउंड रॉबिन वाला एल्गोरिथम डिस्कस करना है। remaining time वाला हो चुका है वो? Longest remaining round robin start करना था। यस मैम, राउंड रॉबिन स्टार्ट करना है। So today I'll write on MS Word because I'm not having my that writing pad. ठीक है, तो MS Word में मैं share करती हूँ, मैं लिखती हूँ। Can you see the word file? यस मैम। यस मैम। ठीक है। Today we start with round robin algorithm, which is basically for time sharing systems. Time sharing system हमने जब starting में we have studied the types of we have studied the types of operating systems. In that we have studied multitasking or time sharing system. You remember? We have studied multi-programming systems, Yes. multi-programming operating system, then multitasking operating system. So multitasking is also known as multi-sharing या time sharing operating systems. ठीक है? So जो हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। yeah. Okay. So this algorithm is basically for time sharing system. So इसमें क्या होता है? This somewhat this algorithm is somewhat similar to first come first serve algorithm, but the main difference is in this we add preemption is also added in this algorithm. जैसे कि राउंड रॉबिन में आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में आपने देखा था जो पहले आएगा the CPU is allocated to that particular process, but there was no preemption. But in this we follow the first come first serve method also, and we are using preemption also. ठीक है? And in this algorithm we have to uh, assign a time quantum. Time quantum means कि आपको एक similar suppose you are in your class, ठीक है? There are 50 students in your class, and 50 students okay. Okay, so there is only one system. Suppose only one system is there, and 50 students want to share that system. They want to perform some task. So what we do in round robin algorithm, we assign equal amount of time to each and every process. And for that process, after that time is completed, we preempt the process, that current process, and we assign the CPU to some other process. So हर एक process को equal amount of time के लिए CPU execute करने के लिए मिलता है in round robin algorithm. So it is specially designed for time sharing systems. You know time sharing system? What is time sharing system? बताइए. Yes, anybody tell me what is time sharing system?
Astha, you tell me. Astha Goel. Yes. मैम मल्टी यूजर को एक साथ कंप्यूटर शेयर करने के लिए देता है। मल्टी यूजर्स कहाँ से आ गए? हमारे बहुत यूजर की सारे बात ही नहीं, प्रोसेस की बात प्रोसेस, यस मैम, मल्टी प्रोसेस को एक साथ। मल्टीपल प्रोसेसेस ऑल ऑफ अ टाइम। हमें ऐसा लगता है कि की सारी प्रोसेसेस दे आर रनिंग कॉन्करेंटली, एक साथ रन हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सपोज व्हाट यू आर यूजिंग योर लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो हम आजकल यूज करते हैं, टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट इज देयर। We are using multiple operations. Suppose you are writing on Word, you are listening to songs, and you are surfing some on the internet, something on the internet. So you're doing multitasking. तो क्या होता है, राउंड रॉबिन फैशन में हर एक प्रोसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है। तो इतनी इतनी फास्ट स्विचिंग होती है प्रोसेसेस के बीच में, यू कैन नॉट ऑब्जर्व, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि हम सारी की सारी प्रोसेसेस you assume that all the processes are running concurrently. ठीक है? This is time sharing system. So this algorithm is basically designed for time sharing system, and it is somewhat similar to first come first serve, but preemption is added here, added to enable ठीक है। Now a small unit of time, जिसको हम टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। In this algorithm, a time quantum is a time slice or time quantum. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इसको डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं टाइम स्लाइस। इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। देन इसकी जो लेंथ होती है टाइम क्वांटम की, इट मे बी इट इज जनरली बिटवीन 10 to 100 milliseconds. ठीक है, so have you studied circular queue in data structure? You know what is circular queue? क्यू तो आपको पता होगा ना क्या होती है क्यू? यस मैम। है ना? तो सर्कुलर क्यू भी पता होगा, सर्कुलर क्यू क्या होती है? यस मैम। ओके, सो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होता है, जो रेडी क्यू है जिसमें ये सारी प्रोसेसेस वेट कर रही हैं फॉर देयर टर्न, दैट रेडी क्यू इज ट्रीटेड एज अ सर्कुलर क्यू की तरह इसको ट्रीट करते हैं, बिकॉज हर एक क्यू को अगेन, जैसे फर्स्ट जो सपोज आपका जो प्रोसेस P1 है, ठीक है, P1, P2, P3, P4, ठीक है, सपोज देयर आर 4 प्रोसेसेस इन योर रेडी क्यू। तो आपने टाइम क्वांटम यूज करके सबको इक्वली, सपोज आपने P1 को पहले एग्जीक्यूट किया, देन इसी ऑर्डर में आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ये एग्जीक्यूट किया इसी ऑर्डर में। अब क्या होगा, अगेन रेडी क्यू में सारी की सारी प्रोसेस जाएंगे, इफ देयर रिमेनिंग टाइम इज इफ देयर इज रिमेनिंग टाइम टू एग्जीक्यूट फॉर दिस प्रोसेस, तो अगेन ये रेडी क्यू में जाएंगे। सपोज आपकी P4 सबसे पहले, तो हम इसको इस ऑर्डर में लिख लेते हैं।
ये रेडी क्यू है, ठीक है। रेडी क्यू में ये प्रोसेसेस हैं, अब इनको एग्जीक्यूट होना है। तो सबसे पहले सपोज P4 सबसे पहले आया है, तो P4 को सबसे पहले CPU मिला उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के लिए, सपोज 1 मिली सेकेंड के लिए इसने एग्जीक्यूट किया। देन P3, P2, देन P1, ठीक है, इसी ऑर्डर में इनको एग्जीक्यूट किया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ये P4 एग्जीक्यूट होगा तो ये अगेन रेडी क्यू, ये रेडी क्यू है, दिस इज रेडी क्यू। तो रेडी क्यू में क्या होगा, अगेन P4, मतलब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये सारी प्रोसेस एक ही बार एग्जीक्यूट होके अगेन रेडी क्यू में जाती जाएंगी, ठीक है। जैसे P4 ने सबसे पहले अगर एग्जीक्यूट किया है तो P4 अपना एग्जीक्यूशन करके अगेन रेडी क्यू में चला जाएगा, मतलब सर्कुलर क्यू में ही अपने आप को अगेन एंड अगेन एक एक की टर्न आती जाएगी। समझ गए ना आपने क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ, we'll see some examples, we'll solve the question, then you will easily understand. ठीक है, now we'll solve a question. Suppose here burst time is given as 24, 3 and 3. Now we have to use this round robin algorithm to calculate the average waiting time and average turnaround time. अराइवल टाइम, सपोज अराइवल टाइम नहीं दिया, अगर दिया है तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे। सपोज इट इज नॉट गिवन, देन फिर हम P1 से स्टार्ट कर देंगे। हम इसमें लिख लेते हैं, अराइवल टाइम भी ऐड कर लेते हैं। If suppose in any question, in any algorithm, arrival time is not given, then you can ignore it और आप फिर उस तरह से जो भी आपकी algorithm है इस तरह से P1 से स्टार्ट करते हुए फॉलो करेंगे। If arrival time is not given. So this is your question. Now, first of all, we'll draw a Gantt chart. Gantt chart. तो दिस इज 0 है ना, मैं ये प्रॉपर्ली लिख नहीं पा रही हूँ वर्ड फाइल पर, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है। तो इन द रेडी क्यू वी हैव ओनली वन प्रोसेस एट दिस टाइम, एट टाइम 0। तो P1 को हमने CPU असाइन कर दिया, ठीक है सब। एंड इन दिस क्वेश्चन योर टाइम क्वांटम इज आल्सो गिवन। जब भी राउंड रॉबिन के क्वेश्चन होंगे तो टाइम स्लाइस गिवन होगा। टाइम स्लाइस इज गिवन एज ठीक है।
तो 4 milliseconds के लिए we have to run all these processes. So at time 0 we have only one process, तो हमने इसको CPU allocate कर दिया and 4 milliseconds तक हम इसको execute करेंगे. This is 4 milliseconds, ठीक है. तो P1 execute हो चुका है 4 milliseconds के लिए. अब next turn आएगी किसी और process की. तो at time this 4th millisecond we have two processes in the ready queue, P2 and P3. ठीक है. तो P2 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है. तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसको फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट कम P2 पहले आया था, P2 को हमने 4 milliseconds के लिए CPU दे दिया. P2, लेकिन P2 needs only 3 milliseconds to execute. तो ये क्या करेगा, ये 3 milliseconds execute होने के बाद ये प्रोसेस बाहर आ जाएगी. तो ये होगा 4 + 3 7 तक ये एग्जीक्यूट हुआ है. ठीक है. अब हमने थर्ड P3 को CPU असाइन किया. P3 को भी सिर्फ 3 milliseconds चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, जबकि हमने उसको टाइम क्वांटम जो सेट किया 4 milliseconds का किया. तो ये एग्जीक्यूट होगा 7 + 3 10. ठीक है. अगेन अब किसकी टर्न आएगी, राउंड रॉबिन में हर एक को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है. अगेन P1 को CPU एलोकेट कर दिया जाएगा. बट 10 + 4 14. But there is no process in the ready queue, only P1 is there. तो अगेन इसी को कंटिन्यू P1 को ही एलोकेट किया जाएगा. तो कितने हो गए यहाँ से, 4 + 8 12 13 14 15 16 18 20 and 24. ठीक है. तो इस केस में इस तरह का गैंट चार्ट बन रहा है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस all the things, waiting time and turnaround time. मैम जब P1 कंप्लीट होगा तो वो 30 हो जाएगी ना, 30 सेकंड्स. यस मैम 30 हो जाएगा. 30 हो जाएगा, चेक कर लेते यस हैं. मैम. P1 यहाँ एग्जीक्यूट हो चुका है सिर्फ 4 के लिए. तो 20 इसको और चाहिए, 10 to 30 हो जाएगा. ठीक है. Now we have to write the completion time. Waiting time. Completion time of P1 is 30. P2 is 7 and P3 is 10. Turnaround time कैसे निकालते हैं? This completion time minus arrival time. 30. This is 6. And this is 10 minus 2 8. Now we have to calculate the waiting time. Waiting time क्या होता है? Turnaround time minus burst time. minus burst time. So 30 minus 24, 6. 6 minus 3, 3. 8 minus 3, 5. Now average निकालना है. कितना है ये टोटल? 44 है ना? 44 divided by 3. 14.66.
ये आ रहा है 14.66 है ना? यस मैम। एंड दिस इज 4.66। 4.66। ठीक है, राउंड रॉबिन में आप हम और एग्जांपल्स देखते हैं अभी। बेसिकली आपको बस टाइम क्वांटम जो है उस टाइम के लिए असाइन करना है, और फिर नेक्स्ट अगर उसका रिमेनिंग टाइम, अगर ये इनकी प्रोसेस का अगर बर्स्ट टाइम ज्यादा होता है, अगेन ये रेडी क्यू में चले जाते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, बाकी तो सेम ही है जो हम एल्गोरिथम हमने यू नो हाउ टू कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम, टीएटी एंड वेटिंग टाइम, दिस इज सेम, बट कॉन्सेप्ट हर एक एल्गोरिथम का डिफरेंट है, बाकी इसमें कुछ है नहीं डिफरेंट, है ना? ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं राउंड रॉबिन के। मैम यस, मैंने में डिफरेंस क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? राउंड रॉबिन और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में डिफरेंस क्या है? राउंड रॉबिन और दूसरी क्या बोली आपने? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में तो हम उसका ये यस देखते मैम। हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम जिसका कम बचा है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले, लेकिन हम इसमें ये नहीं चेक करेंगे, हम इसमें क्या सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू यूज करने देंगे। आपके पास अगर 10 प्रोसेस है तो 10 की 10 प्रोसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, सपोज 1 मिली सेकेंड के लिए पहले को मिला, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबको एक एक टर्न इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू मिला। लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में हम ये देख रहे थे कि उसका बर्स्ट टाइम जिसका मिनिमम बचा हुआ है उसको हम सीपीयू एलोकेट करते थे, सबको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू नहीं मिल रहा था उसमें। ये डिफरेंस है। क्लियर है? अभी है डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एंड टाइम स्लाइस इज गिवन एज 3 milliseconds. यूज राउंड रॉबिन। ठीक है, अब आप सारी चीजें कैलकुलेट करिए, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। दिस इज योर क्वेश्चन। मैम दोनों प्रोसेस का अगर टाइम अराइवल टाइम सेम है तो मैम किसको प्रायोरिटी देंगे? आप फिर किसी को भी दे सकते हो, P2 को देना, जिसको देना चाहो किसी को भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, किसी को भी दे सकते हो, लेकिन जिसको पहले दे रहे हो उसको आगे भी उसी प्रायोरिटी में आपको कंसिडर करना है।
क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है ना? मैम 36 एंड 26.33। एक मिनट नोट डाउन कर लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है? एवरेज 36 टी एवरेज TAT 36 and average waiting time 26.33। ये आंसर है, चेक कर लेते हैं। सभी का यही आ रहा है? मैम बस 1 मिनट।
Average turnaround time 36.66 और waiting time 27. ठीक है, इनका 26 आ रहा है। ठीक है, चलो ये देखते हैं टेबल में चेक करते हैं। ठीक है, so time quantum is given as 3 milliseconds. So we have to give 3 milliseconds to each and every process for execution. Now you're standing here, at 0 second there is no process in the ready queue. ठीक है, तो this time will remain idle. ये जो टाइम है इस टाइम पे CPU idle रहेगा. Then first millisecond है, we have two processes P2 and P6. So we can assign CPU to any process. Suppose हमने P2 को assign कर दिया, ठीक है. So P2 को हम 3 milliseconds के लिए हम ये जो मैंने लिखे हुए हैं 1 से 3, 1 से 4, 3 milliseconds के लिए P2 execute हुआ. Then 4th second पे आप देखिए रेडी क्यू में कौन कौन है. रेडी क्यू में we have P2, P3, P4, P5. ये सारी की सारी प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू में. बट हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आया था P6. तो P6 को हमने 3 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट किया. देन P2, P3, P2 भी आपका एक बार एग्जीक्यूट हो गया, P6 भी हो गया, ठीक है. अब सेकंड जो टाइम सेकंड 2 मिली सेकेंड पे P3 आया था, तो P3 को हम CPU असाइन करेंगे. देन P3 के बाद आया था P4. P4 को हमने असाइन किया, ठीक है. अब P5, एक मिनट पहले P5 आया है, देखिए P2 आया, उसके बाद P6, ठीक है, फिर P3, देन P5, देन P4. According to their arrival time, we have given 3 milliseconds to all these processes. ठीक है. अब यहाँ हम 13 मिलीसेकंड पे देखिए, अब P1 भी अराइव हो चुका है ना. अराइवल टाइम इसका P10 था, तो ये भी आ चुका है रेडी क्यू में. तो अब P1 को भी 3 मिलीसेकंड के लिए CPU मिल गया. तो आप ये देखिए सारी प्रोसेस को 3 मिलीसेकंड्स के लिए CPU एग्जीक्यूट करने के लिए मिल गया है, ठीक है. ये फर्स्ट एक आपकी फेज चली गई. अब रेडी क्यू में सारी की सारी प्रोसेसेस फिर से जाएंगी, क्योंकि इनका रिमेनिंग टाइम है अभी एग्जीक्यूशन का, कुछ टाइम बचा हुआ है. Yes, सारी की सारी प्रोसेस, क्योंकि अभी देखो 3 मिली सेकेंड में किसी का भी बर्स्ट टाइम नहीं है, तो सारी की सारी प्रोसेसेस फिर से रेडी क्यू में चली गई. अगेन हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम फॉलो करते हुए यही पैटर्न फॉलो करेंगे, P2, P6 यही सब. तो P2, P6 हम इसी तरह से फिर से P2 को देंगे, क्योंकि P2 को सबसे पहले मिला था, अब P2 को फिर से मिलेगा CPU. तो P2 को चाहिए 6 सेकेंड्स, है ना. तो 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 सेकेंड्स के लिए और एग्जीक्यूट करेगा P2. फिर 22 पे ये बाहर आ जाएगा एग्जीक्यूशन करके. देन P2 के बाद P6 आया था, तो P6 को खुल गया CPU. देन P6 के बाद P3. ठीक है. ट्वेंटी 28 से 29, 30 एंड 31. तो P2, P6, P3 हो चुका है, देन P5, देन P4, ऐसा सब गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे सारे नंबर्स.
ठीक है, तो ये यहाँ तक तो ठीक है, 1 4 this is 16 19 22 25 पे ये प्रोसेस अराइव हुई है, सॉरी। तो अब साइन करना मुझे सर, बाकी सबका आता है, मैं उसको मैसेज कर देती हूँ। P2 1 से 4 तक होगी ना? P2 हाँ, 1 मैं से तो start होगी। बेटा एक मिनट, जस्ट अ सेकंड है ना, मैं एक बार या साइन कर दूँ। डेट आज की है 27 प्लेस भोपाल, IIIT भोपाल। ओके, क्या बोल रहे हो बेटा? दिस इज सॉरी, हाँ, दिस इज 0 to 1। मैम 1 to 4 होना चाहिए ना? हाँ, ये हो गया ना, 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, देन 13 Yes, यहाँ आ yes. गया, ठीक है। तो ये अब सही है ना? P2 P6 P3 P5 देन P4, ठीक है। हमने अगेन यही सेम पैटर्न फॉलो किया है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट हम FCFS फॉलो करके P2 इसी ऑर्डर में हमने फिर से CPU सबको असाइन कर दिया। देन इसके बाद आएगा P1, ठीक है। तो ये 28 to 31 देन 34 37, ठीक है। अब आप चेक करिए किस किस का एग्जीक्यूशन फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो 6, ये इनको 2 बार CPU मिल चुका है, ये इनका बर्स्ट P2 P3 कुछ गलती की है हमने, अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो, इसका बर्स्ट टाइम था 5, है ना, हमने इसको 6 P4 को ऑलरेडी 3 सेकंड्स पहले मिल चुके हैं, तो P4 को यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होना है, तो ये सिर्फ 33 तक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। P2 यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, P1 तक सबकी, क्योंकि सबका बर्स्ट टाइम अभी बचा हुआ है, ठीक है। जब ये सेकंड टाइम अपना सेकंड टाइम स्लाइस में जब एग्जीक्यूट होंगे, तो P2 को 6 सेकंड्स चाहिए, तो ये अगेन 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट हो जाएगा। P6 को चाहिए 9 सेकंड्स, तो अभी इसका रिमेनिंग बचेगा। P3 को भी 6 सेकंड्स चाहिए। P5 नीड्स 8 सेकंड्स, तो उसको भी 3 चाहिए, एंड P4 5, तो ये सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा P4 यहाँ पर, है ना। तो 31 to 33, देन P1 को भी हमने 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट करवाया, तो P4 जो है, P4 बाहर आ चुका है, और ये तीनों प्रोसेस रेडी क्यू से बाहर आ चुके हैं, मतलब सॉरी एग्जीक्यूशन कर चुके हैं कंप्लीट अपना, है ना, सेकंड फेज में। और नाउ वी हैव ओनली 3 प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू, P1 P5 एंड P6, ठीक है। तो हम सेम पैटर्न फिर से फॉलो करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। P1 तक कंप्लीट हो गया, अब हम P2 से फिर से स्टार्ट करेंगे। P2 तो बाहर जा चुका है, P6 भी, P6 का रिमेनिंग है टाइम, P6 का कितना रिमेनिंग है बताओ? 3 सेकंड, 6 सेकंड्स के लिए वो हो चुका है, 3 सेकंड और चाहिए। P3, तो ये एग्जीक्यूट करेगा 36 से 37 38 39 तक। P3 के बाद आया था P5। P3 का तो हो चुका है ना? मैम P6 होगा वो। मैम P6 होगा वो। है ये, हाँ P6 का है। देखो सॉरी, P1 से स्टार्ट, हमने P2 से स्टार्ट किया था, P2 पहले ही बाहर आ चुका है, P2 देन P6 भी कंप्लीट, P6 नहीं हुआ, तो ये P6 होगा, ठीक है। ठीक है, P6 को 3 सेकंड और चाहिए, तो हमने P6 को एग्जीक्यूट किया। फिर P6 के बाद देखिए आपने P3 आया था, लेकिन P3 कंप्लीट हो चुका है, P5 भी कंप्लीटली हो चुका है, P5 बचा है। P5 को 2 P5 चाहिए मैम। P5 हाँ, बचा है P5 2 बचा सेकंड। है। P5 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, 39 से 41 तक, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस रह गई है? P1 P1 18 मिलीसेकंड के लिए होगा।
अब P1 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि और कोई सारी की सारी प्रोसेस कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसने भी कंप्लीट कर लिया, इसने भी, तब हम CPU को कम्प्लीटली P1 को असाइन कर देंगे। तो ये 41 प्लस कितना होगा, क्योंकि देखिए P1 पहले 3 सेकंड्स के लिए यहाँ हुआ एग्जीक्यूट और 3 सेकंड्स ये, तो 6 सेकंड्स आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 18 और इसको एग्जीक्यूट करना है, तो 41 प्लस 18 करिए क्या आएगा, 59 59। ठीक है, तो इस तरह से ये गैंट चार्ट बनेगा। Now we have to calculate the average waiting time and turnaround time. So this is completion time, turnaround time and waiting time. Completion time, you have to check from the Gantt chart, 59. P2, where is P2? P2 is 20, P2 का completion time is 22, P3 28, P4 33, P5 41, P6 39. ठीक है, ये सही लिखा है ना मैंने? अब TAT चेक करते हैं, टर्न अराउंड टाइम, तो 59 completion time minus arrival time, so this will be 49, 21, 28 minus 2, 26, 29, 38 and 38. वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 49 माइनस 24 कितना होता है, 25 15 20 24 30 29. इसका सम अप करिए, क्या आ रहा है कैलकुलेटर से, 201. 201 ही आ रहा है, Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय 6, ये टोटल क्या आ रहा है, 143. 23.8. आप लोग का अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, 24 भी कोई बोल रहा था, ये तो 23 आ रहा है। मैम वो 4 Yes, ma'am. मिलीसेकंड्स के लिए का अराइवल टाइम टाइम 0 ले लिया था आपने, बाद में 10 लिखा था ना। क्या मैंने गलत किया या आप लोग क्या बोल रहे हो? मैं वो मिस्टेक से गलत ले लिया। 10 लिखा था हमने, पहले लिख लिया था तो 0 लिख लिया था, तो उस हिसाब से कर दिया। दिस इज 23.8. $33.5. इस तरह से आपको सॉल्व करना है राउंड रॉबिन के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर मैं इसके डिसएडवांटेजेस बताते हूँ। अब क्लास का मैम टाइम अभी मिनी का मैम, एग्जाम है मैम 11:30 11:30 से। ठीक है, फिर हम यही एंड अप करते हैं। इस फाइल को मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मैं टीम्स पे अपलोड कर दूंगी उसी फोल्डर में ऑपरेटिंग सिस्टम के। और जस्ट अ सेकंड मैं अटेंडेंस चेक कर लूँ, आप लोग कितने स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल हैं। 118 अटेंडेंस में डाउनलोड कर दी।
ठीक है, thank you so much. So we'll meet on Tuesday. In our next class, we'll complete this topic and start with a new algorithm. Thank you, Okay? ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.